Good evening, students. Today is the day 4 of 5 days hands-on machine learning training, and today we'll be doing the projects. Okay, so this is Swarup Gorai, your ML trainer, and we'll be discussing about the projects. One project that we have told we have already said that we are going to discuss one project that is of natural language processing. So as we do not know about language processing, actually we have not discussed about language processing. So we have to discard that project. Huh? Instead of that, whatever we have discussed that about machine learning, that machine learning is divided into three parts. One is supervised, one is unsupervised learning, one is reinforcement learning. So in supervised learning, let me discuss about this machine learning. एक होता है supervised, you know, एक unsupervised, and one is reinforcement learning. तो we are not going to discuss about this. Okay, we have already discussed. इसका प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि reinforcement learning में बहुत सारी बातें आ जाते हैं. आपने देखा ड्राइवरलेस कार देखा, आपने रोबोटिक्स देखा, वो सब जगह में यूज होते हैं. तो नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट reinforcement learning. अब हम सुपरवाइज में देखते हैं. एक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड वन इज क्लासिफिकेशन. और अनसुपरवाइज्ड को क्लस्टरिंग. इसमें क्लस्टरिंग होता है, क्लस्टरिंग. तो व्हाट विल डू, अब रिग्रेशन में हमें एक प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे दैट इज हाउस प्राइस प्रेडिक्शन. एंड क्लस्टरिंग में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कस्टमर सेगमेंटेशन. और क्लासिफिकेशन में एक नया प्रोजेक्ट है, ई साइनिंग ऑफ बैंकिंग का कुछ है. ई साइनिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट है क्लासिफिकेशन के, दैट विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ओके, तो व्हाट विल डिस्कस अबाउट रिग्रेशन प्रॉब्लम. रिग्रेशन में कैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं, क्लस्टरिंग में कैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इटसेल्फ. ओके, और ये वाला विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ओके, नाउ ठीक है, all the data sets and problems are taken from Kaggle. Yeah, and we already have discussed about Kaggle in the doubt session also. So no need to give introduction about Kaggle. So I do not want to give any introduction with about Kaggle now. And we'll end today's training after completing customer segmentation problem. Okay, so let's start the training. और फिर अब let's come to the to our first project, and that is house price prediction. Let's go over there. One second. So now we are coming to the first project, house prices prediction. This is our first project. Okay, so let me explain this thing. House prices prediction. This the data set is taken from Kaggle, Kaggle.com. अब Kaggle.com क्या है, एक जगह है जहाँ पे यू कैन अपलोड डेटा या डेटा सेट, यू कैन डाउनलोड डेटा सेट, और वहाँ पे Kaggle कॉम्पिटिशन्स होते हैं. कोई भी एक डेटा सेट होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम जब आते हैं उसको क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, हु कैन गिव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ओवर देयर, यू कैन ऑल्सो compete with each other with different competitors around the world, and you can also win, and if you win you will get a lot amount of money, and you will get recognition also. So that is Kaggle. From there I am taking this data set. I am telling you, the link is also given over here, but do not worry, I will be providing you all the links. But this data set, whatever data sets I am taking in this machine learning level 1 project, these are simple data set. Simple मतलब किस तरह का simple, that I am telling you. ये मेरे से क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग इतने टिपिकल वर्क है, ठीक है, तो वो करने में ही 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे. उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो हमने ऐसे डेटा सेट लिए जिसमें वो प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट अच्छी डेटा सेट, गुड डेटा सेट यू कैन से. ठीक है, तो वो हमने लिए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने उठाए हुए हैं. सारे 5 प्रोजेक्ट ऐसे ही लिए हमने, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन से वो सब सॉर्ट आउट करते करते हमारा दिन निकल जाएंगे. तो दैट वी विल डू लेटर ऑन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. तो पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द libraries.
तो import numpy as np, import pandas as pd, import matplotlib dot pyplot as plt, import cbon as sns. ओके, आई एम टेकिंग दिस. उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप रीड करेंगे csv, दिस इज csv फाइल. ओके, डॉट csv लिखा हुआ csv फाइल, pd डॉट रीड, उसको करके हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे स्टोर करेंगे डेटा सेट में. फाइल स्टोर्ड इन डेटा सेट. आप लोग एक एक बातें क्लियर प्रॉपर्ली समझ जाओ, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में मैं इससे बातें नहीं करूंगा, फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, बिकॉज आई विल बी इन हरी ऑल्सो, तो नहीं तो 5 प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशन पता है, डेटा सेट डॉट हेड यदि फंक्शन करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट 5 डिस्प्लेस फर्स्ट 5 रोज, डिस्प्लेस फर्स्ट 5 रोज. लेकिन डेटा सेट डॉट टेल यदि करते हो, डॉट टेल फंक्शन, टेल फंक्शन करने से क्या होगा, इसमें लास्ट 5 रोज आ जाएंगे. आप लोग करके देखोगे, लास्ट 5 रोज. आप डेटा सेट डॉट शेप क्या दिया है, 1460 और 81, और 1460 क्या है, दिस वाज द नंबर ऑफ रोज, रोज इज 1460, 1500 ऑलमोस्ट, और कॉलम्स इज हाउ मच, 81 कॉलम्स. सी, इट्स अ बिग, it's a very big data set according to what we have learned in the previous on data pre-processing. It is only of 10 rows and 3 4 columns. ओके, तो उसमें इजीली देखे तो एटलीस्ट इसमें क्या हो गया, उससे आपको एक विजुअलाइज हो गया, समझ गए, तो फिर क्या करें, हमें कोड जब हम इसमें यूज करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट इज ओके फाइन. तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, 1460 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 82. ओके, आप डेटा सेट डॉट कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम्स है आप देखो, ऐसे करके तो आप कॉलम्स सारे देख नहीं सकते हो, ये देख रहे हो यहाँ पे कॉलम्स दिख नहीं रहे, तो कि ये सारे कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉलम. आप 2-3 बातें मैं बता दूं. अब ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बोलते ही मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया. अब ये है क्या, किस लिए है, ये तो हमने बताया ही नहीं. दैट इज ऑल्सो द थिंग. आप भी सोच रहे हो सर ये किस चीज का प्रोजेक्ट है, क्यों है. जब भी आप कोई घर खरीदने जाते हो तो व्हाट यू डू, आप बहुत सारी चीज देखते हो, लोकेशन आप देखते हो, मेट्रो के नियर है क्या नहीं, बसेस मिलते हैं क्या नहीं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलते हैं क्या नहीं, उसके बाद प्लॉट कितना है, ठीक है, तो कितने एरिया है, ठीक है, तो और प्राइम लोकेशन है, ईस्ट फेसिंग है, इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज होते हैं कोई भी घर खरीदने के पहले. ओके, और ये जैसे ईस्ट फेसिंग लोगे तो क्या होगा, वो प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, तो जो वेस्ट फेसिंग है उसका प्राइस कम होता. तो ये सारी चीजें आपको देख रहे हो, कोई भी घर इजीली नहीं खरीदे जाते. अब हाउस प्राइसेस प्रेडिक्शन, प्राइस प्राइस मतलब क्या था, न्यूमेरिक. न्यूमेरिक जब आउटपुट न्यूमेरिक हो तो क्या होगा, ये आउटपुट यदि न्यूमेरिक है तो दैट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम. सिंपल दिमाग में रखो, जब आउटपुट इज न्यूमेरिक दैट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम. तो ये 2-3 चीजें हमें तो पता चल गया. हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मतलब हाउस कभी कहीं खरीदे जा रहे हैं तो उसको प्रेडिक्ट करने के पहले आप क्या करोगे, उसका सब कुछ देखोगे, बहुत सारे फैक्टर्स देखोगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस देखोगे, वेदर कैसे रहता है वो भी देखोगे. तो ये इतनी सारी बातें आ जाते हैं. होप आई एम क्लियर. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी बातें, ये जो जितने सारे कॉलम्स है, ये क्या है, कॉलम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉलम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स. Depending upon the columns, depending upon the columns, ठीक है, depending upon the columns, the price is determined. Okay, तो columns, what you can say about columns, columns are characteristics. आप डेटा सेट डॉट इन्फो, इन्फो में क्या होते हैं, इन्फो में सारे बातें पता चल जाते हैं, जो नल है नहीं है क्या है, ठीक है, तो एवरीथिंग. जैसे 1450 नॉट नल, 14 नहीं 1460 नॉट नल, मतलब नल है नहीं. 91 डॉट डल, यहाँ पर 91 डॉट डल है, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह के बहुत सारी बातें यहाँ पे बता देते हैं. ये देखो सारे कॉलम्स के बारे में, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, एवरीथिंग इज कम ओवर हियर. अब स्टैटिस्टिक्स और समरी, समरी किसके होते हैं आपको पता है, समरी होते हैं न्यूमेरिक कॉलम्स की. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, एनी आइडिया. जैसे बहुत सारा डेटा सेट है, बहुत सारा डेटा है, एग्जाम्पल ले लो 4, 5, 7 एग्जाम्पल ले लो, ऐसे सिंपल 9, 15, 20, 25 ऐसे करके बहुत सारे हैं, सबके मीन निकालना. मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन आप लोग बचपन में भी किए हो. मीन मतलब क्या, सम वैल्यू, सारे वैल्यूज का क्या करेंगे, सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो क्या हो गया वो, दैट इज मीन. ओके, अब उस मीन से कितना दूर में एक एक वैल्यू है,
दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। कितने दूरी में है सारे वैल्यूज। जैसे मीन हो गया 50 और एक वैल्यू है 2, तो 50 से कितने दूर में, तो उसके बाद एक हो गया 52 में, 52 वैल्यू है, तो 50 से कितने दूर में, तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना कितना डिविएट कर रहा है मीन से, तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, दिमाग में डालो, ठीक है। एक मीन वैल्यू, उसके बाद क्या होता है, ये दीज आर ऑल परसेंटाइल्स, उसके बाद क्या है मैक्स वैल्यू, ऑल दीज थिंग्स, ओके। अब उसके बाद न्यूमेरिकल कॉलम्स, अब हम चेक करेंगे कि कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स है, तो डेटा सेट डॉट सिलेक्ट ऑर्डर डू इंक्लूड इंट 64 फ्लोट से, दोनों न्यूमेरिकल है, डॉट कॉलम्स। आप ये चीज देख रहे हो, जो मैंने पिछले जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में जो मैंने जो आपको करवाए थे, वो सारी चीज ही मैं वही सेम कमांड्स, सेम सेंटेंस, सेम स्टेटमेंट्स आई एम रिपीटिंग हियर, ठीक है, तो आप लोग को इजी हो जाएंगे। तो देखो ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स है। आप कितने हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स, तो आप क्या करेंगे, लेन लगा देंगे और यही यही लाइन को रिपीट कर दो, आप सिंपल यही लाइन को रिपीट किया ब्रैकेट में, ये लाइन कॉपी कर दो, यहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली इट विल शो 38। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 करके, उससे बेटर ना देखो कोई कमांड होना चाहिए, तो लेन लगा के ये कर दो, तो विल गेट द वैल्यू। अब हम कैटेगरिकल कॉलम देखना है, तो डेटा सेट डॉट सिलेक्ट ऑर्डर उसको डिटेल्स इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, तो क्या होगा, ये सारे है, ये इतने सारे कैटेगरिकल कॉलम्स है ये सारे। अब लेन लगा दिए, लेन लगाते क्या हो गया, टोटल वैल्यू आ गया 43, तो 43 क्या हो गया, कैटेगरिकल कॉलम्स, क्लियर। उसके बाद आप लोग चलेंगे डीलिंग विथ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज के लिए क्या क्या करते थे हम लोग, डेटा सेट डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एनी फंक्शन, वही सेम, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू जैसे है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितनी नल वैल्यूज है भाई, डेटा सेट डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट सम फंक्शन जैसे करेंगे, टोटल नल वैल्यूज आ गए, ये टोटल नल वैल्यूज। इज इट क्लियर। आप डेटा सेट डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन यदि करेंगे तो फिर हमें दिखेंगे जो कौन कौन सा जो रोज है जिसमें नल वैल्यूज है, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारा है तो फिर इसमें नहीं दिख रहे, बिकॉज स्पेस इज लेस, ठीक है। आप कॉलम्स विद नल वैल्यूज, हम क्या करें, डेटा सेट डॉट कॉलम्स डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एडी, जितने कॉलम्स में नल वैल्यूज है वो कॉलम्स को निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे देखना तो विजिबल होना तो बहुत मुश्किल है, तो हमने क्या किया, ये सारे कॉलम्स है जिसमें नल वैल्यूज है, ओके फाइन। अब एक और बात दिमाग में आप लोग रखो और लिखो भी, 50% से ज्यादा यदि नल वैल्यूज है, 50% से ज्यादा यदि नल वैल्यूज है, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उस कॉलम को, कॉलम का हमारा कोई काम की नहीं है, ओके। अब लेंथ लेंथ निकालेंगे तो क्या हो गया 19, तो 19 कॉलम्स में क्या है, नल वैल्यूज है, 19 कॉलम्स हैज नल वैल्यूज। नल वैल्यूज। अब नल वैल्यूज विद हीट मैप, अब हम हीट मैप में देखना चाहते हैं, हीट मैप क्या है, हीट मैप क्या ग्राफिकल फिगर है, जिसमें हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, इसको करने के प्लॉट डॉट फिगर फिक्स साइज 16,9, 16,9 मैंने साइज लिए, ठीक है, आप ले लो 20,25 ले लो, आपकी मर्जी है, मैंने 16,9। एसएनएस डॉट हीट मैप डेटा सेट डॉट इज नल का जितने वैल्यूज है वो शो कर दे, पीएलटी डॉट शो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो डैश 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 दिख रहा है, इस तरह के दिख रहा है, मतलब ये सारे क्या है, नल वैल्यूज है, इस तरह से दिख रहे हैं हीट मैप में, क्या नहीं सही हो भैया, ये देखिए डैश 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 ये दिख रहा है, ये सारे नल वैल्यूज है, ये बहुत सारे हैं, ये दिख नहीं रहे ऐसे करके, ठीक है, तो दीज आर ऑल नल वैल्यूज, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, दिस इज विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। तो इसमें क्या किया हमने, सीबॉर्न यूज किया, एसएनएस डॉट हीटमैप करके डेटा डॉट इजनल को खाली डिस्प्ले करने के लिए। आप डेटा सेट डॉट शेप, शेप यदि चेक करेंगे, एक रोज कितना कॉलम्स कितना, तो 1460 81, 1460 रोज है, 81 कॉलम्स है, ओके। अब आप परसेंटेज देखते हैं, कितना परसेंट नल वैल्यूज है, तो क्या करेंगे, सिंपल नल परसेंट इक्वल टू क्या, डेटा डॉट इज, ये करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। आप कॉलम्स टू ड्रॉप मोर देन 50% होने से क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ो उसको, फिर ये हम प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। कॉलम्स टू ड्रॉप मोर देन 50% नल वैल्यू जिसकी उसको ड्रॉप करेंगे, तो क्या लिखे, कॉलम्स टू ड्रॉप इक्वल टू नल अंडरस्कोर परसेंट, नल परसेंट ग्रेटर देन 50, नल परसेंट वो जो निकालेंगे यहाँ पे, नल परसेंट जो यहाँ पे निकाले, क्या करेंगे, सम कर दिए, सम करके क्या करेंगे, अपॉन डेटा सेट डॉट शेप, शेप कितना है 1046,81, ठीक है, वो शेप हो गया इंटू 100, 100 करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगा, तो वो परसेंटेज यहाँ पे यदि ग्रेटर देन 50 है
डॉट कीज कर दो, तो फिर क्या करेंगे, उस कॉलम्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। आप कॉलम्स को ड्रॉप क्या, इंडेक्स एल पूल क्यू सी फेंस डॉट डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट कॉलम्स टू ड्रॉप, ये सारे कॉलम्स क्या हो गया, ड्रॉप हो चुके हैं। दीज कॉलम्स आर ड्रॉप्ड, कॉलम्स ड्रॉप्ड, क्योंकि इसमें मोर देन 50% क्या है, मोर देन 50% नल वैल्यूज है, इसीलिए। हाँ, नल परसेंट किस लिए यूज हुए, नल परसेंट किस लिए यूज हुए, और जो 50 मोर देन 50% की मैंने बात की, तो उसके लिए एक्चुअली दिस इज द फार्मूला। फार्मूला तो सिंपल पता है, जैसे गेन परसेंट गेन बाई सी पी इंटू 100, वही सेम सेम फार्मूला है। जो टोटल टोटल जो था, दिस वन इज द टोटल एंड दिस वन इज द दिस वन इज द नल वैल्यूज। तो नल वैल्यू मतलब ये हो क्या रहा, नल वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज इनटू 100, ये कर रहे हैं एक्चुअली। ये तो आप लोग को पहले भी किया परसेंटेज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ड्रॉप कर दिए, उसको डेटा सेट इक्वल डेटा सेट डॉट ड्रॉप कॉलम्स टू ड्रॉप, ये सारे आ गए ऑटोमेटिकली। आप डेटा सेट कॉलम्स टू ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू ये सारे कॉलम्स डाल दो, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सारे कॉलम्स ड्रॉप हो गए, ये सारे कॉलम्स। ये कितने कॉलम्स है, एक दो तीन चार, चार कॉलम यदि ड्रॉप हो तो कितना था, पहले 81 था आई थिंक, 81, तो 81 माइनस 4 कितना था, 77। आप देखते हैं डेटा सेट डॉट सेव करेगा तो देखो 1460, मतलब क्या होगा, 4 कॉलम्स आर ऑलरेडी ड्रॉप्ड, ओके। आप कॉलम्स विद नॉल वैल्यूज, डेटा सेट डॉट कॉलम्स, नॉल वैल्यूज क्या है, ये सारे, लेकिन लेस देन 50% है, ये सारे दिख रहे हैं हमें। अब कितने टोटल कॉलम्स है, तो लेन लगा दो, तो क्या हो गया, 15 कॉलम्स, ठीक है, विथ नल वैल्यूज। अब ऐड कॉलम्स मीन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप क्या न्यूमेरिकल क्या कॉलम्स में, क्या न्यूमेरिकल जो कॉलम होगा उसमें क्या करेंगे, मीन लगा देता है, स्पेशली हम मीन ही लगाता है हमेशा। तो हमने पहले भी किया था, कहा किस पे, आपने जो डेटा प्री प्रोसेसिंग अभी जो थोड़े दिन पहले किए उसमें भी हमने किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीन हमारे पास क्या है, लॉस प्लांट, फिर एम एस वी एन आर एरिया, उसके बाद गैरेज, ठीक है। ये तीन है जिसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 3 अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तीन में क्या करेंगे, हमें सिर्फ मीन डाल देंगे, मीन मीडियन मोड डाल सकते हैं लेकिन मीन डालेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जब हम देखेंगे वहां पे जब प्रैक्टिकली देखेंगे, जब मैक्सिमम वैल्यूज दिए हो, कुछ वैल्यूज नहीं दिए हुए, तो क्या करेंगे, मीन से ही रिप्लेस करेंगे। तो वही डेटा सेट जो भी कॉलम नेम दे दो, फिर डेटा सेट कॉलम नेम, फिल ना डॉट डेटा सेट, फिर कॉलम नेम, उसके बाद डॉट करके मीन फंक्शन लगा दो, ऐसे ऐसे करके तीनों कॉलम का लगा दो। इज इट क्लियर? उसके बाद लेन ऑफ डेटा सेट डॉट कॉलम, डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एनी। आप क्या करेंगे, फिर लेंथ इसका चेक कर रहे हैं इसी चीज की, क्योंकि देखो तीन तीन का तो मैंने वैल्यूज पुट कर दिए मीन से, तो 12 - 3 कितना होता, तो नहीं 15 - 3 कितना होता, 12। देखो 12 कॉलम्स है जिसमें क्या है, नल वैल्यूज अभी है, और 12 जो कॉलम्स है वो क्या है, कैटेगरिकल वैल्यूज है, दीज आर ऑल कैटेगरिकल कॉलम्स, कैटेगरिकल, ओके। अब ऐड कॉलम्स मोड टू कैटेगरिकल कॉलम्स, मोड हम यूज करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू रिपीट हुए उस कॉलम में, उसी को हम क्या करेंगे, डाल देंगे उसमें। तो क्या करेंगे, आगे देखते हैं कौन कौन सा कैटेगरिकल कॉलम्स है, इतनी सारे कैटेगरिकल कॉलम्स है, सोच लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सारे कैटेगरिकल, इतने सारे कैटेगरी कॉलम्स है, और इसमें से कितनी कैटेगरी कॉलम्स में देखिए, ये सब में, सारे में जिसका लेंथ है 12, तो ये सब में क्या करेंगे, हमने सारे सारे में हमें मोड डालना है। तो वही सेम डेटा सेट, उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम नेम इक्वल डेटा सेट कॉलम नेम डॉट फिल ना डेटा सेट, फिर कॉलम नेम डॉट मोड, मोड करके एड, ये क्या दिया, दिस वन इज द इंडेक्स, इंडेक्स 0 में हमने डाल दिया, दिस इज इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें ऐसे करके सब में डाल दो आप, ऐसे करके सब में डाल दो, तो सारे में क्या हो गए, सारे में हम क्या किया, मोड से फिल कर दिया, दिस इज द तरीका वही सेम ही है, ठीक है। सब में मैंने क्या कर दिया, सब में मोड से फिल कर दिया। उसके बाद फिर हम चेक कर रहे हैं लेंथ ऑफ डेटा सेट इज नल, ऐसे चेक कर रहे, तो क्या कर रहे, व्हाट वी आर सीइंग 0, मतलब क्या होगा, 12 जो कॉलम्स थे, 12 जो कॉलम्स थे उसमें सारे हमने मोड डाल दिए, तो फिर एक भी कॉलम ऐसे नहीं है जिसमें नल वैल्यू है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इट इज 0। अब डेटा डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एनी करने से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब क्या हो गया, फॉल्स मतलब देयर आर नो नल वैल्यूज, और ट्रू मतलब नल वैल्यूज है उसमें, ठीक है। आई थिंक यू इट इज क्लियर। आप डिस्ट्रॉय, आप विजुअलाइजेशन में चलते हैं हम लोग, दिस आर ऑल विजुअलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो विजुअलाइजेशन। क्या किया मैंने,
प्लॉट डॉट फिगर वही 69, ये जनरल स्टाइल है ऐसे करके लिखने का। बार हम क्या करेंगे, बार बनाएंगे इस तरह की। एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट डेटा सेट सेल प्राइस, मतलब क्या होगा, ये इस तरह कुछ होंगे, इस तरह कुछ आएंगे। यहाँ पे एक्चुअली आया नहीं है फिगर, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। इस तरह कोई फिगर है। उसके बाद क्या क्या, बार डॉट लीजेंड स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी दिखा दिया। स्क्यू, व्हाट इज दिस स्क्यूनेस? स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, इस तरह कोई फिगर, मतलब क्या होगा, इसका मिड पॉइंट यहां से ले लो, इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, फिर इसके मिड पॉइंट, फिर ऐसे करके नीचे जा रहा है। तो ये क्या हो गया, स्क्यूनेस वाला प्रॉपर्टी हो गया। ये लिखने का तरीका ये, स्क्यूनेस इज टू एफ डॉट फॉर्मेट डेटा सेट सेल प्राइस डॉट स्क्यू फंक्शन, ऐसे करके हम लिखेंगे। आप पीएलटी डॉट शो करेगा तो यही वाला फिगर आएगा, इस तरह कोई फिगर आएगा, ये यही फिगर नहीं, इस तरह का कोई फिगर आएगा। आप कोरिलेशन मैट्रिक्स, आप कोरिलेशन मतलब क्या होता है आपको पता ही है। कोरिलेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर देयर। तो कोरिलेशन मतलब जिसके जितने मीन्स, जैसे एक्स बढ़ रहे तो वाई भी बढ़ रहे, तो दैट इज ए कोरिलेशन, मतलब हाईली कोरिलेटेड, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स बढ़ रहे वाई भी बढ़ रहे, एक्स कम हो रहे हो तो वाई भी कम हो रहे, तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखेगा हाईली कोरिलेटेड क्या है, जैसे ये एक हाईली कोरिलेटेड है, ये एक हाईली कोरिलेटेड है, ये एक हाईली कोरिलेटेड है, ऐसे करके बहुत सारे है जो हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है, तो वी कैन सी दिस ओवर हियर, देख कौन कौन सा कोरिलेटेड है। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स, इससे पता चल जाएंगे कि कौन कौन सा कॉलम्स कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड है। अब हीट मैप, हीट मैप क्या होगा, हीट मैप से हम डायग्राम देखेंगे। क्योंकि अब तो मैंने क्या किया, मैंने सारे नल वैल्यूज को मैंने फिल कर दिया विथ मीन एंड मोड। अब हम देखेंगे तो हीट मैप का फिगर देखो इस तरह के कुछ आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये कैन यू सी दिस इज ए स्केल एक्चुअली, ये हाईएस्ट है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये करके देखो, जे कोरिलेशन, मैक्सिमम कोरिलेशन किसकी है, कैसे है। जैसे यहाँ पे 0.092 हाईली कोरिलेटेड। एक मिनट, उसके बाद देखो इधर, ये कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, हाईली कोरिलेटेड और क्या क्या है, 0.29, 0.46 हाईली कोरिलेटेड ये हो गए। हाँ, ये भी एक कोरिलेटेड है क्योंकि 0.78। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टुवर्ड्स 1 ओनली। 0.0 से एकदम कोरिलेटेड है, ये भी कोरिलेटेड है, यू कैन सी। उसके बाद ऐसे करके हमें ढूंढना पड़ेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोरिलेटेड कौन कौन सा कॉलम किसके साथ कोरिलेटेड है। ये जो कॉलम नेम यहाँ पे दिया हुआ, लॉट एरिया, ये कैन यू सी आईडी, एम एस सब क्लास फ्रंट, लॉट फ्रंटेज, लॉट एरिया, तो ये सेम यहाँ पे भी वही सारे कॉलम्स होंगे, वही सारे कॉलम्स यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो डायगोनल्स होंगे ना, जैसा आईडी, यहाँ पे भी आईडी होगा, तो क्या होगा, डायगोनल्स का हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि एक बंदा एक्स से तो हाईली कोरिलेटेड होता ही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग। ये पूरा फिगर आया नहीं, ये बहुत बड़ा फिगर, ये नीचे चलते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम पता कर लेंगे जो कौन सा कॉलम किसके साथ हाईली कोरिलेटेड है। और देख रहे हैं हाईली कोरिलेटेड क्या क्या है, ये एक हाईली कोरिलेटेड नहीं है, देख रहे हो 1 1 दिया हुआ, मतलब क्या हो, एक्स एक्स के साथ एक्स एक वैल्यू है, तो एक्स एक्स खुद के साथ हाईली कोरिलेटेड होता है एंड द कोरिलेशन वैल्यू इज 1। मतलब देख लो, आईडी है, ये नीचे क्या है, नीचे भी आईडी है, ये आईडी होगा, तो क्या है, ये वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एम सब क्लास, तो इधर भी एम सब क्लास है, तो एम सब क्लास क्या होगा, ये हाईली कोरिलेटेड, तो ये सारे इसका कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्स के साथ हाईली कोरिलेटेड होता ही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट थिंग। एक्स वाई के साथ यदि हाईली कोरिलेटेड, दैट आई एम गोइंग टू सी। ठीक है, ये एक हाईली कोरिलेटेड हो गए। ऐसे करके हमें ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ये सब ढूंढना पड़ता है। लेट मी सी 0.61 ठीक ठाक कोरिलेटेड है, लेकिन ऐसे करके निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हाईली कोरिलेटेड डेटा सेट डॉट कोर, कोर फंक्शन मैंने लगा दिया, उसमें क्या हो गया, जितना हाईली कोरिलेटेड उसको मैंने हाई कोर में डाल दिया। अब हाई कोरिलेटेड फीचर इक्वल टू हाई कोर में मैंने डाल दिया हाईली कोरिलेटेड डेटा कॉलम्स डॉट इंडेक्स एब्सोल्यूट हाई हाई स्कोर, हाई कोरिलेशन सेल प्राइस ग्रेटर देन 0.5,
सेल प्राइस के साथ ही तो करेंगे ना, एक्चुअली सेल प्राइस के साथ ही देखेंगे सारे कोरिलेट। यदि 50% ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 0.5, तो वो सारी चीजें 0.5 बटे 50% ज्यादा है तो फिर क्या होगा, वो आगे हाईली कोरिलेटेड फीचर्स का दर आ गया वो सारी चीजें। अब हाई कोरिलेटेड फीचर्स जैसे ही मैंने उसको डिस्प्ले किए तो क्या होगा, सारे कॉलम्स दिख गए जिसमें हाईली कोरिलेटेड, दोज हु आर हाईली कोरिलेटेड। ओके, आप लेंथ देख रहे, लेंथ जैसे देखे तो क्या 11 कॉलम्स आर देयर दैट आर हाईली कोरिलेटेड। आप लोगों को शायद समझ आ गया। अब ये एक फिगर पहले बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक विजुअलाइजेशन है, इससे अब इसके कोई मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं इस फिगर से मतलब ऐसे कुछ नहीं है। अब हाई कोरिलेटेड इक्वल डेटा सेट डॉट कोर, डेटा सेट डॉट कोर करते क्या होगा, जितना कोरिलेटेड है वो सारे क्या होगा, हाई कोरिलेटेड का, हाई कोर का अंदर आ जाएगा। अब हाई कोरिलेटेड फीचर्स मतलब कॉलम्स चाहिए मुझे, तो हाई कोर डॉट इंडेक्स एब्सोल्यूट हाई कोर, और क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस, सेल प्राइस के ऊपर ही तो बातें हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल प्राइस ओनली। सेल प्राइस ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 जो भी होंगे वो सारे क्या होगा, हाईली कोरिलेटेड फीचर्स होगा उसमें आगे। अब हाई कोरिलेटेड फीचर्स करते क्या होगा, वो सारे कॉलम्स दिख गए। अब क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ हाईली कोरिलेटेड फीचर कितना हो गया, 11। अब क्या करेंगे अब हम हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को प्रॉपर्ली देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने छोटे छोटे हैं, हमें देखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो हम इसको फिर हिट मैप में देखना चाहेंगे, हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को हम फिर हिट मैप ड्रॉ करेंगे। पीएल डॉट फिक्स वही सेम चीज, एक्स इक्वल टू एसएनएस डॉट हिट मैप डेटा सेट इक्वल टू हाईली कोरिलेटेड फीचर्स, ये वाला, ये जो मैंने निकाले हाईली कोरिलेटेड फीचर्स डॉट कोर फंक्शन एंड सीएमपी इक्वल टू कूलवर्म, मतलब कूलवर्म मतलब क्या हो गया, फिगर का जैसे आंखों में ये लगे, ये ना जब प्लेजेंट लगे, दैट्स वाई दिस इज ए फॉर्म। आप कूलवर्म लेके और भी बहुत सारी चीजें होता है, आप लोग एक बार प्रैक्टिकली देखोगे, ठीक है। कूलवर्म अमाउंट नॉट इक्वल टू ट्रू, एनोटेशन ट्रू होगा, और लाइन विड्थ इक्वल टू टू, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ये जो विड्थ है ये प्रॉपर्ली दिखे, नहीं तो क्या होगा, आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कौन सा क्या है, ठीक है। एंड दिस वन इज द स्केल, वन ऑर्डर से हाईली कोरिलेटेड। अब देखते, देखो मैंने बोला था ना ओवरऑल क्वेल, तो यहाँ पे भी देखो ओवरऑल क्वेल ये वाला है। तो ये क्या, ये देखो, ये तो हाईली कोरिलेटेड, एक सेक्स के साथ हाईली कोरिलेटेड होता है तो फॉरगेट अबाउट दैट। 50% का ऊपर जितना है वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 0.096, ये किसके साथ हुआ, बिल्ट, कौन सा बिल्ट, ये वाला बिल्ट आई थिंक, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो 0.59 ऐसे करके आप सब कुछ देख सकते हैं। 0.79 तो जो हाईली कोरिलेटेड वो ऑटोमेटिकली दिख गया है। 0.71, 0.96, 0.096 नहीं, 0.9, 0.83 इट्स वेरी हाईली कोरिलेटेड, 0.83 वेरी हाईली कोरिलेटेड, 0.82 हाईली कोरिलेटेड। तो देखो हाईली कोरिलेटेड जो भी कॉलम्स है हमें दिख गया, किसके साथ क्या है वो भी दिख गया हमें। तो ये देखने के हाइट मैप में क्या होगा, हम हाईली कोरिलेटेड फीचर्स का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप डीलिंग विद कैटेगरिकल वैल्यूज, कैटेगरिकल वैल्यू को हम कैसे डील करेंगे, वही सेम डेटा सेट डॉट शेप कर दिए, कैटेगरिकल कॉलम्स इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये सारे आ गए। उसके बाद लेंथ ऑफ कैटेगरिकल क्या हो गया, इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लेंथ जब देखेंगे तो क्या हो गया, 39 कॉलम्स आर देयर दैट आर दोज आर कैटेगरिकल। ओके, अब क्या करेंगे, वो जो कैटेगरिकल है उसको हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले ही बोला था डमी वेरिएबल ट्रैप नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, एक एक को फर्स्ट वाले जो उसको होगा उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको उसको आप ड्रॉप कर देंगे। तो कैसे लिखे, पीडी डॉट गेट डबीज डेटा इक्वल डेटा सॉप ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ड्रो, फर्स्ट को हटा दो। तो डेटा सॉप डॉट शेप, जैसे शेप आप ढूंढेंगे तो क्या होगा, 1460 टू 238, पहले कितना था 77 था, अब 238 हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, कॉलम्स बढ़ गए, क्योंकि ऑल आर कन्वर्टेड टू न्यूमेरिक। अब देखते कैटेगरी कॉलम कुछ है, नहीं है, डेटा सिलेक्ट डेटा टाइप्स कुछ भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। अब उसको ये यदि ज्यादा इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो फिर आप लेंथ निकाल देंगे, लेंथ निकालते क्या होगा, इट इज शोइंग दैट दे ओनली जीरो कॉलम्स आर, जीरो कॉलम्स आर कैटेगरिकल। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, डेटा सेट में इतने सारे काम किया, अब हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे। अब स्प्लिटिंग करेंगे किस लिए, ताकि हम इसको ट्रेन कर सके, फिट कर सकते मशीन लर्निंग मॉडल में। तो स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल डेटा सेट डॉट ड्रॉप, लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो कॉलम है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, दैट इज द आउटपुट, लास्ट कॉलम इज ऑलवेज आउटपुट। एक्स इक्वल टू डेटा सेट डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू सेल प्राइस। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से, वन सेक,
जैसे वन कॉलम है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। मोर देन वन कॉलम तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ओके, अब क्या ड्रॉप कर दिया मैंने, उसके बाद क्या कहेंगे, वाई इक्वल डेटा सेट, वाई में डाल दिया सेल प्राइस को, यहाँ पे ड्रॉप किया कि सेल प्राइस को ड्रॉप कर दिया, तो फिर बाकी सारे जो भी कॉलम्स है वो सारे आ गया एक्स के अंदर, वो जो है दोज आर इंडिपेंडेंट, these are x is for independent columns and y is for dependent column. अब फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेड टेस्ट स्प्लिट, ये भी हमने पहले देखे थे, ट्रेड टेस्ट स्प्लिट एंड ऑल। ओके, अब एक्स ट्रेड एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इक्वल टू टेक्स वाई 0.2 80% मैंने बोला था टेस्ट का साइज होगा, तो 80% विल बी ऑफ ट्रेडिंग साइज, रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब क्या किया, एक्स ट्रेड डॉट शेप, शेप कर दिया तो क्या हो गया, ये वाला शेप आ गया। अब एक्स एक्स ट्रेड डॉट शेप हो गया, अब एक्स ट्रेड डॉट शेप क्या हो गया, 1168, एक्स टेस्ट डॉट शेप ये आ गया, ठीक है। तो इतने इतने कॉलम्स हो गए रोज। अब क्या करेंगे, फीचर सिलेक्शन करना है, ये एक्सटेंड हो गया, ये वाई ट्रेड हो गया, ये एक्स टेस्ट हो गया, वाई टेस्ट, ये सारे निकल गए। उसके बाद फीचर्स के लिए, फीचर्स के लिए किस लिए करते हैं, फीचर्स के लिए ताकि ऑल द एरर्स दैट विल कम थ्रू, वो एरर्स जल्दी फिक्स हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फीचर्स के लिए करेंगे। ये बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है अभी। तो क्या किया, वही सेम, फिर एसी डॉट ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने एक्स टेस्ट, वो कम है डेटा तो उसको एसी डॉट ट्रांसफॉर्म, और एक्सटेंड में क्या ज्यादा है तो एसी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड ऐसे करके, तो और उसके बाद एक्सटेंड एक टेस्ट किए, तो देख रहे ऑल दीज आर क्या बोले, स्केलिंग हो चुके सबकी। अब मॉडल, अब रिग्रेशन जो है हमें तो समझ में आ गया कि रिग्रेशन है, रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो रिग्रेशन के कितने सारे मॉडल है, रिग्रेशन, रिग्रेशन प्रॉब्लम ये, तो मॉडल्स भी रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हमें मॉडल्स भी रिग्रेशन वाला ही मॉडल यूज करना पड़ेगा। अब एक होता है लीनियर रिग्रेशन, मतलब क्या होगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन यहाँ पे इनपुट तो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो हमने यूज किया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन मॉडल्स बहुत सारे हैं, आप लोग को एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उस बुक में आप देखिए बहुत सारे हैं, हमने सारे नहीं यूज करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही यूज करके दिखाऊंगा, आप लोग और भी सारे यूज करके आप कर सकते हो। ओके, तो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, फ्रॉम स्केलर डॉट या लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। आप लीनियर रिग्रेशन क्या है, दिस इज ए क्लास, आप क्लास का क्या करेंगे, आप इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट, तो रिग्रेशन अंडरस्कोर एवलर कर दिए, अब रिग्रेशन अब अंडरस्कोर एवलर एक्सटेंड और वाई ट्रेड, एक्सटेंड और वाई ट्रेड दोनों डेटा को हमको पास करना है, दोनों डेटा पास कर दिए, पास जैसे किए ये ऐसे कुछ आउटपुट आया, ठीक है, ऐसे कोई आउटपुट आया, छोड़ दो। अब वाई प्रिंट, वाई प्रिंट में क्या करेंगे, वाई टेस्ट, फिर वाई टेस्ट को अब डालना पड़ेगा, वाई टेस्ट को डाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे जी कि ये परफॉर्मेंस कैसे, इवेल्युएशन दिस वन। हाँ, रिग्रेशन प्रॉब्लम को इवेल्युएट करने के लिए हम R2 स्कोर यूज करते हैं, R2 स्कोर इट्स ह्यूज मैथमेटिक्स, हमें ह्यूज मैथमेटिक्स में अभी जाना नहीं है, क्योंकि बहुत जूनियर बच्चे भी आप लोग हैं, बहुत जूनियर बच्चे जिसको मैथमेटिक्स नहीं आते प्रॉपरली, तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो R2 स्कोर यूज करेंगे, बाकी जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा कौन से स्कोर यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए R2 स्कोर यूज करेंगे, ये दिमाग में रखो। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स, स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट R2 स्कोर, अब R2 स्कोर में क्या करेंगे, वाई टेस्ट और वाई प्रिंट को दोनों को डाल दो, वाई टेस्ट करके जो भी आउटपुट आया वाई प्रिडिक्ट करके, तो आप देख रहे हैं आउटपुट क्या है, -1.115, तो क्या है, बहुत बुरा आउटपुट है, मतलब क्या, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज नॉट गुड, ये तो हमें समझ में आ गया। तो ठीक है, देखते हैं दूसरे मॉडल डाल के देखते हैं, दूसरे मॉडल में भी यदि नहीं आएगा तो फिर तीसरा मॉडल का हम देखेंगे, दूसरा मॉडल एक डालते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अब रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन होता क्या है, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, तो इसके भी बहुत सारा पेड़ है, ट्रीज है, डिसीसेड ट्रीज, फॉरेस्ट में क्या बहुत सारा ट्रीज है, और उस ट्रीज का नाम क्या है, डिसीसेड ट्रीज।
डीसी ट्रीज का क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब ऑल आउटपुट, एवरेज ऑल आउटपुट्स, एवरेज लिखो, सब छोड़ो, एवरेज ऑल आउटपुट्स, एवरेज और मीन ऑफ ऑल आउटपुट्स। उसमें क्या होगा, हमारा जो प्रेडिक्शन है अच्छा आएगा, ठीक है। हम देखते करके स्केलर डॉट एनसेबल, एनसेबल टेक्निक इसको बोलते हैं, बहुत सारे लेके आप कर रहे हैं ना, एनसेबल टेक्निक, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ओके। रैंडम फॉरेस्ट आरएफ कर दिया हमने, क्या रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इज ए क्लास, तो हम क्या इसके इंस्टेंस से बनाए और उसको क्या क्या एक्सटेंड और वाइट को डाल दिए, तो ऐसे कोई आउटपुट आया। इस आउटपुट को छोड़ो, अब हम देखेंगे, हम जब ये करेंगे इसकी स्कोर निकालेंगे, जब इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है। अब वाई प्रेडिकल क्या है, रिग्रेसर डॉट रिग्रेसर डॉट आर डॉट प्रेडिक्ट एक्सटेंस डाल देंगे तो वाई प्रेडिक्शन निकल गया। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकालेगा, आर टू स्कोर इक्वल टू वाई टेस्ट वाई प्रेड करके क्या हो गया, ये आ रहा है 0.84। सी दिस इज गुड, मतलब 84%, 84% प्रेडिक्शन ठीक है। हालांकि स्टिल इट इज पुअर, 99%, 98% आते हैं, लेकिन 84% इज बेटर देन दिस वन, दिस इज नेगेटिव, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, रैंडम, वी कैन यूज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज ऑल, ऐसे करके ही करना है। और कोई इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप मुझे मेल करो विद द डाउट, आई एम गोइंग टू क्लियर ऑन द नेक्स्ट डे, ऑल द आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, ठीक है। तो आप लोग मेल कर सकते हो उसके लिए। और ये जो फाइल है, जो आपके जो फाइल में आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरे ये फाइल हम प्रोवाइड करेंगे आपको आफ्टरवर्ड्स। चलो अब हम लोग करते हैं इसके प्रैक्टिकल। So let's do the practical part of house price prediction. Okay. अब हम फिर वहीं पे गए, जाके हम क्या करेंगे, गूगल को लब खोलो, अब इसमें फिर मैं क्या करूँगा, न्यू नोटबुक बनाएंगे और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन को अपलोड करेंगे पहले। लेट्स अपलोड इट। तो अपलोड नोटबुक, चूज फाइल, डेटा प्री प्रोसेसिंग तो हो चुका है। अब हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में जा रहे हैं। सो कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो डेटा सेट है जो मैं बात कर रहा था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, वो कैगल में है। अब हम इस लिंक से क्लिक करेंगे। कैन यू सी, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गई है, एडवांस इवेल्यूएशन टेक्निक kaggle.com। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल क्या होगा, CSV और टेक्स्ट दोनों है। टेक्स्ट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, so we are not going to take that test file, okay, we are going to take the CSV file। और ये ट्रेड डेटा से, ये जो डेटा सेट है यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, यहीं से डाउनलोड करोगे, ओके। इस kaggle.com में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में, ये नहीं kaggle.com में सर्च करा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन तो बहुत सारा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अलग अलग डेटा सेट डाल के रखे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और ये जो डेटा सेट जो की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अंडर कॉम्पिटिशन। आप लोग, आप ग्रुप बना के यहाँ पे कॉम्पिटिशन में भी कम्पीट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को लेकर, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने जैसे 2 टेक्निक यूज़ किए, यहाँ पे लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्निक खुद बनाते हैं और यूज़ करके करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द फाइल आउटलाइन प्रेडिक्शन, इट्स ओवर हियर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाइल की जरूरत है, trend.csv। अब ये कैसे आएगा, अब इसको लाने के लिए ऐसे करेंगे, अपलोड, डेस्कटॉप में जाओ, ये ट्रेंड, इसको ओपन कर दो, ओके। अब देखते हैं फाइल आया कि नहीं। trend.csv ये दिखाया हुआ है,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर वही रन सेम स्टाइल। इसके बाद डेटा सेट को देखते हैं रीड कर पा रहे कि नहीं रीड कर पाए, फाइल नॉट फाउंड। ओके, देखते हैं। कंट्रोल वी, देखते हैं। फिर आ गए, ये लग रहा है ये हटेंगे, ये जो फ्रंट स्लैश मैंने डाला हुआ है। एक बार और करके देखते हैं। अब देखा कितना स्लोली गोल गोल घूम रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मीन्स ये हो रहा है, इट्स वर्किंग, हो चुके, इट्स फाइन, कुछ एरर नहीं आया, मतलब ठीक है। इसका क्या डेटा एक्सप्लोरेशन, इसमें हेड हेड डालेंगे तो क्या होगा, ये सारे फर्स्ट 5 रोज आ जाएगा। टेल फंक्शन भी डाल देते हैं, एक बार देखते हैं, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। रिकनेक्ट, इसको कनेक्ट करना दो, शायद इंटरनेट इशू है इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। हाँ कनेक्टेड, अब देखते हैं। एरर आ गया, डेटा सेट इज नॉट डिफाइंड। फिर ये वाला करो, हाँ ठीक है, अब ये रन करेगा, आ गया डेटा सेट हेड में सारी चीज़ आ गई। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कोड वाला लेंगे, तो डेटा सेट डॉट टेल देख लेके देखते हैं। मैं जो प्रोजेक्ट में जितनी कमांड यूज़ कर रहा हूँ ये तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, दैट आई एम नॉट यूजिंग। आप लोग खुद एक्सप्लोर करोगे, पाइथन में जाके खुद देखोगे, इट्स ओपन ओपन कम्युनिटी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देख सकते, ये लास्ट वाले सारे दिखा रहे हैं, लास्ट वाले, लास्ट 5 रोज। अब शेप देखना है, तो दिस वन इज द शेप। ओके, देन डेटा सेट डॉट कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम है, ये सेम बातें वही कर रहे हैं जो पहले किए थे। इंफॉर्मेशन कौन सा नॉल 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 ये सब भी दिखेंगे, लेकिन ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टैटिस्टिकल समरी देखेंगे, इट इज़ ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्या होगा, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें आ गई। ये तो मैंने पहले ही बताया, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से देखने के लिए इन64 प्लॉट 64 करके हम कर देंगे। हम देखो या यू सी हो गई है, मैं वही सेम स्टेटमेंट्स राइटिंग अगेन अगेन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। फिर प्रोजेक्ट में कैसे क्या चेंज होंगे वो आगे देखते हैं। तो ये आगे सारे दीज आर ऑल न्यूमेरिकल। आप लेंथ जेट देखना चाहते हैं, आप बैठ के काउंट तो नहीं करेंगे ना, तो लेंथ देखना है, यही कमांड आगे लेंथ लगा दो, तो 38। अब कैटेगरिकल, ये कैटेगरिकल कॉलम्स है, ये कितने हैं, 43 की स्लॉट। आप डीलिंग विद नल वैल्यूज, नल वैल्यूज देखते हैं। हाँ ट्रू नल वैल्यूज है, ट्रू मतलब नल वैल्यूज है। अब कितना है, टोटल कितना हो सकता है, 696, इट्स लॉट, बहुत सारा नल वैल्यूज है। अब क्या हुआ, इस सारे मैं देखना चाह रहा हूँ क्या कहाँ का नल वैल्यूज है, ठीक है। तो 259 एक दिख रहा है, लेकिन इतने सारे तो दिख नहीं सकते।
हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स विथ नल वैल्यूज ये सब चेक करेंगे। तो डेटा सेट डॉट कॉलम्स डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एनी करने से क्या होगा, सारे कॉलम्स आ गया जिसमें नल है। और कितने टोटल कॉलम्स है, ऐसे 19 लेन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हिट मैप से क्या करेंगे, अब वो नल वैल्यूज देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर फिगर आया, ये देख रहे हो डैश 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 किया हुआ, तो ये नल वैल्यूज है सारे। कमांड हुई है, अब डेटा सेट डॉट शेप 1460818 अब नल परसेंट इक्वल टू क्या कर, डेटा डॉट इज नल डेटा सेट डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन आपको डेटा सेट डॉट सेव 0 इंटू 100 करते क्या होगा, वो सारे नल परसेंट आ गया। अब नल परसेंट यदि आप डिस्प्ले करोगे तो सारे रोज का नल परसेंट बता रहे हैं, किसी का 0 है, किसी का 17%, ऐसे करके बहुत सारे हैं। अब क्या है, ऐसे यदि किसी का 50% ज़्यादा है कोई रो की कॉलम की, तो उसको क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। तो कॉलम्स टू ड्रॉप इक्वल टू नल परसेंट। अब नल परसेंट क्या है, ग्रेटर देन 50 कर दो, डॉट कीज, ठीक है। करके यदि आप कर दे तो क्या होगा, ये जो कॉलम्स को ग्रेटर देन 50 वो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स टू ड्रॉप पे आ जाएगा। अब कॉलम्स टू ड्रॉप जब डिस्प्ले करोगे तो क्या होगा, एल आई आ गया, एल ए आ गया, पुल क्यू सी आ गया, फेंस मिस फीचर, ये सारे क्या है, ये सारे कॉलम्स को ड्रॉप करने। तो आप क्या करेंगे, डेटा सेट से ड्रॉप करना। तो डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट डॉट ड्रॉप, ये सारे कॉलम्स को आप ड्रॉप कर दिए। ओके, हमने तो ये सब रेडी नहीं किया था शायद, देख लो वो कॉलम्स है ही नहीं, ठीक है। तो डेटा सेट डॉट ड्रॉप का वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब डेटा सेट डॉट शेप, देखो 14607 आप कॉलम्स विद नल वैल्यूज, डेटा सेट डॉट कॉलम्स डेटा सेट डॉट इज नल नल वैल्यूज देखते हैं, वही सेम आएंगे। एंड लेट मी टेल यू, ठीक है। तो ये जो आप मैंने फंक्शन है जो भी वट एवर आई रिटन, इट शुड बी इन सीक्वेंस। ये नहीं जब फर्स्ट किया उसके बाद बीच में फिफ्थ कर दिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, जैसे मेरा अभी एरर आया, ठीक है, मैंने पहले ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैं उस चेक करूँ उस कॉलम को, कॉलम तो दिखेगा ही नहीं, कॉलम तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो चुके हैं, इसलिए एरर आ जाता है। अब लेंथ देखते हैं, 15, ये टोटल 15 है। ऐड कॉलम्स मीन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, जो भी कॉलम्स है उसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिक मीन डाल देंगे। तो क्या होगा, वही जिस नल वैल्यूज में, तो लॉट फ्रंटेज, ठीक है, तो उसके डॉट मीन फंक्शन वही सेम करके आप कर दिए। उसके बाद हम फिर यदि इसको ऐड करते हैं, एक मिनट भाई सब कर लो, इसके बाद देखते हैं लेंथ कितना है, 12, ठीक है। अब ऐड कॉलम्स या ऐड कॉलम्स मोड टू कैटेगरिकल कॉलम्स, मोड डाल देंगे, क्योंकि हम हमेशा ही मोड डालते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले देखते हैं कॉर्कोट सा ये है हमारे कॉलम्स है, रन करते हैं इसको। उसके बाद इज नल नल तो होंगे ये सारे, ये जितने कॉलम्स हैं। अब लेंथ निकालो, लेंथ कितना है, 12 है। अब ये जो 12 है, ये सब में क्या करेंगे, हम मोड डाल देंगे। ये कमांड तो मैंने पहले ही बता चुका है, सेम। इसके बाद देखते हैं लेंथ इज नल कितने वैल्यूज है, फिर चेक करो तो 0, मतलब सब में तो क्या होगा, वैल्यू पुट हो चुके हैं, ठीक है। तो इम्प्यूट हो चुके, इम्प्यूटेशन यू कैन से टेक्निकली, ठीक है। तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर तो 0 ही आएंगे। अब इज नल डेटा सेट डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट इज एनी करोगे तो फॉल्स आएगा, देखो फॉल्स आ गया। आप प्लॉटिंग करेंगे, ये देखो ये इस तरह का फिगर वहाँ दिख नहीं रहे थे क्योंकि मेरा आया नहीं था उसमें। फिगर 69, ठीक है। तो स्क्यूनेस कौन सी है, ये वाली फिगर, ये वाली चीज ऐसे करके जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा था, दिस इज द स्क्यूनेस प्रॉपर्टी। माने डेटा सेट का किस तरह के कंडीशन है, डेटा सेट किस तरह की है वो हमें पता चल रहा है। और यहाँ से ठीक है जाके फिर ये राइट माने राइट स्क्यू हो गया, राइट स्क्यूनेस। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स, आप डेटा सेट टू इक्वल डेटा सेट डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू सेल प्राइस को हटा देंगे क्योंकि दैट इज द आउटपुट को नहीं लेते, विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट होता है। डेटा सेट डॉट शेप 1460 क्योंकि एक को हटा दिया तो 1460 हो गया। आप कोरिलेशन में डाल देंगे वही सेम स्टाइल, फिर 69 टाइटल भी डाल दिए, ग्रेड इक्वल टू ट्रू, ग्रेड फॉर्म में, ये देखो दीज आर ऑल द ग्रेड्स।
ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन पता चल रहा है। उसके बाद हम हीट मैप यूज़ करते हैं। अब तो आप लोग हीट मैप समझ में आई गया। साइज दे दे 25 ऐसा हीट मैप कोरिलेशन CMP को कूल वार्म आप चेंज कर सकते हो उसको। आप देखोगे खुद देखो बहुत सारा ऑप्शन चाहिए आपके पास। एनोट इक्वल टू ट्रू, लाइन विड्थ इक्वल टू टू, लाइन विड्थ छोटा कर दिया मैंने, तो क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स है करके ये दिख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे 0.78 जैसा है, ये भी हाईली कोरिलेटेड 0.7, हाईली कोरिलेटेड 0.73, हाईली कोरिलेटेड है। ये देखो 0.86 ने क्या है, देखो ये भी एक हाईली कोरिलेटेड है इस तरह की। अब हाई वही सेम हाई जो मैंने किया था वही सारे हाई कोरिलेशन, तो 0.5 होगा तो क्या होगा, हाई कोरिलेटेड फीचर्स में चला गया। उसके बाद हाई कोरिलेटेड फीचर्स ये सारे आ गए। उसका लेंथ ऑफ हाई कोरिलेटेड 11 है कॉलम से, जिसका हाईली कोरिलेटेड है। अब वो हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को मैं क्या किया, इसमें फिर डिस्प्ले किया सिर्फ कोरिलेटेड हाईली कोरिलेटेड को। तो आप देखो पूरा क्लियरली दिख रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद डेटा सेट डेटा डीलिंग विद कैटेगरिकल कॉलम, वही सेम इंक्लूड कितना कैटेगरिकल कॉलम से। अब लेंथ कितने, अब गेट ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू किस लिए, जहाँ हमें क्या करना है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना। और ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू किस लिए, ताकि नल डमी वेरिएबल ट्रैप में फंसे ना। अब शेप देखते बढ़ेगा 238 हो गया 1460 238। अब कैटेगरी कॉलम्स अब चेक करते कैटेगरी कॉलम, कैटेगरी में होगा नहीं। और लेंथ भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। देखिए लेंथ, अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द डेटा सेट। अब क्या करेंगे, एक्स डेटा सेट डॉट ड्रॉप सेल्स प्राइस को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वाई इक्वल डेटा सेट सेल प्राइस, वो डेटा सेट सेल प्राइस क्या हो गया, वाई में आ गया। उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब तो पता ही आप लोग को, मैं रन कर दे रहा हूँ बस। इसके बाद आगे फीचर स्केलिंग। उसके बाद एक्सटेस्ट का खंड हो गया। उसके बाद बिल्डिंग द मॉडल, आप मॉडल को बनाएंगे किसके लिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्यों ले रहे हैं वो भी पता है आप लोगों को, मैंने बताया था। ये करके आप देखते हैं इसको पहले तो लेना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन को। उसके बाद इसको एक्सटेस्ट को डाल दो, प्रेडिक्ट करके एक्सटेस्ट को डालो, उसके बाद R2 स्कोर डालो, उसके बाद इंपोर्ट करो। तो व्हाट इज इट, -2.5135 बढ़ गया। फिर इशूज और बढ़ गया, मैंने इतनी बुरी हालत है इसकी ये डेटा सेट से। तो हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट मांगे। इसके इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट वही सेम, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन हो गया। अब देखते हैं इसके R2 स्कोर में डाल के देखता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। 0.83। आपको एक्जी बूस्ट रिग्रेशन नहीं करना है, ठीक है, इतने तक ही करना है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, क्योंकि ये भी हम लोग क्या करेंगे लेवल 2 में जाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा थोड़ा ये सब चीज़ों के लिए। जैसे मैं रैंडम फॉरेस्ट में सिंपल बता दिया, एवरेज करके और ऐसे करके कैलकुलेट कर दो तो दिस इज दिस, तो आपका निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज करने से नहीं होंगे, कैसे डिसेंट्री हो रहे हैं उसके, कितनी इम्प्यूरिटी और भी बहुत सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा मैथ्स भी कर लोगे जो न्यू एडमिशन है जो BCA फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और सेकेंड थिंग है जैसे ये है व्हाट इज दैट नोन एज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में काफ़ी मैथमेटिक्स है, ओके। तो वो भी आप लोगों ने किया नहीं, आप लोग को पता ही नहीं चीज़। अब यदि मैं मैथ्स करूँगा फिर तो ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाएंगे, यही बात है। अब एक और बात, जैसे बहुत सारे बच्चे सपोज इसके फिफ्थ सेमेस्टर MCA फिफ्थ या BCA फिफ्थ या MSc IS या PGDIS, वो लोग भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप वो लोग कैसे करेंगे, ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट। आप लोग का दिमाग में ये भी आ रहा है सर तो 5 मिनट 10 मिनट, अभी 10-15 मिनट में ही प्रोजेक्ट ओवर कर दिए, ठीक है। तो उधर 30 मिनट लगा दिए, इधर 15 मिनट में स्पेंड कर दिए।
तो 45 मिनट्स, तो ये प्रोजेक्ट हम कैसे दे देंगे कॉलेज में? तो ये प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में नहीं देना है। इस तरह का आप और भी बहुत सारा प्रॉब्लम सेट निकालो कैगल से, और उसको लेके आप इसी तरह का प्रोग्रामिंग करो, और फिर उसको आप सबमिट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मैं ये सबमिट करूँगा तो ये तो होगा 10 से 15 पेज का, लेकिन हमें तो प्रोजेक्ट का पेज एटलीस्ट 60-65-70 पेजेस होना चाहिए। तो फिर उसमें व्हाट कैन वी डू? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द सिनॉप्सिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आप एक प्रॉब्लम लोगे तो उसकी मैथ, जैसे प्रॉब्लम लोगे उस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लोर करोगे, इसी तरह से करोगे तो ब्यूटीफुल डायग्राम्स भी आएंगे। किस तरह के डायग्राम? आई एम टेलिंग यू, जैसे सी बॉन्ड के बहुत सारा बॉक्स प्लॉट है, उसके बाद वायलिन शेप के बहुत सारे फिगर्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ और इस तरह के बहुत सारे शेप्स आएंगे। ये सी बॉन्ड बहुत अच्छी एक ही है, जो जिसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे ज़्यादा नहीं करवाया है। आई एम टेलिंग यू, स्लॉट इट्स ह्यूज, ठीक है। मैंने लिमिटेड ही करवा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग का दिमाग में जाए। लिमिटेड ज़्यादा करवा दूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज। आई एम टेलिंग यू, लिमिटेड जब दिमाग में चला जाएगा तो फिर ऐड करते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये नहीं जब से ये फरवरी में आप लोग का जब प्रोजेक्ट ओवर, ये ट्रेनिंग ओवर हो गया तो आप लोग बस हो गया खत्म, चलो आप अपना पढ़ाई करते भूल गए। ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे और नए नए डेटा सेट लेके आप लोग अपना काम करते रहना। ई बुक्स भी दिए, ई बुक्स से ही पढ़ो, आप कोड्स भी प्रोवाइड कर दो, कोड्स भी देखो कैसे, कोड से ही यूज़ करो बार बार। आई एम टेलिंग यू, और कुछ स्किल एंड डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल में डालोगे, स्किल एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसमें सारे ये सब बातें लिखा हुआ। आपको यदि कोड नहीं आता, कोड नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो चाहिए वो सारे इंटरनेट में अवेलेबल है। इट्स सच ए ह्यूज कम्युनिटी दिस पाइथन। तो आप लोग को डाटा की जरूरत नहीं, कोडिंग आना जरूरी है नहीं जरूरी है, ठीक है। वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। तो वो चीज़ आपको होना चाहिए। हाँ, थर्ड थिंग, आप लोग को मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम, तो लीनियर रिग्रेशन का पूरा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। L1 रिग्रेशन, L2, ठीक है। तो उसके इस तरह का बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद F2 R2 स्कोर ये क्या है, उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वो क्या है, वो सब एक्सप्लेन, वो सब मैथमेटिक्स कैसे अदर में काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जब आप लिखोगे ना अपने प्रोजेक्ट में तो ऑटोमेटिकली 60 के 100 पे क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह से तो आप लोग स्टॉप बाइंग प्रोजेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, ठीक है। तो आप लोग एक कोड को समझ लो और आप लोग खुद प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, खुद अपना डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है। तो आप देखोगे आप लोग का अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, और जो सेकंड लेवल आएगा तो उसमें तो बात ही अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, विल टॉक लेटर ऑन अबाउट इट, ठीक है। इट्स ह्यूज ह्यूज, आई एम टेलिंग यू। तो एटलीस्ट ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद ही नेक्स्ट में ही आ जाएगा टेक्स्ट वगैरह लेके, आप थोड़ा बड़ा बड़ा डेटा सेट लेके, प्रॉब्लम्स लेके उसको सॉल्व करके आगे जाएंगे। फिर इमेज आ जाएगी, वीडियोस कैसे कैप्शनिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इमेज प्रोसेसिंग का भी तो प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो यही है रैंडम फॉरेस्ट। जैसे रैंडम फॉरेस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया, इंपोर्ट है स्केलर डॉट एनसेबल। एनसेबल टेक्निक है क्या, ये तो आपको पता नहीं। एनसेबल मतलब क्या, बहुत सारा एल्गोरिदम, खाली जरूरी है सिंगल एल्गोरिदम। इसमें क्या है, सारे डिसीजन ट्रीज ले लिया, जरूरी नहीं है। अब हम और भी कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स लेके भी हम एक्चुअली असेंबल लेके जाते हो, अलग अलग कंपनीज का लेके हम असेंबल करके कंप्यूटर सेट रेडी करते हैं, उसी तरह के असेंबल बोलते हैं। अलग अलग एल्गोरिदम्स को लेके एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, तो उसको असेंबल बोलते हैं। तो असेंबल टेक्निक है दिस रैंडम फॉरेस्ट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रोजेक्ट, एंड दैट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। दैट कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पता है? कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब क्या हो रहा है, क्लस्टरिंग हो रहा है, अलग अलग क्लस्टर्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो एक्सप्लेन करते, लेट मी एक्सप्लेन दोस कोड्स एंड देन वी विल कम टू द प्रैक्टिकल। चलो स्टार्ट करते हैं वो। Now we start with the second project of day 4, okay, and that is customer segmentation. And what is a customer segmentation actually? That also we want to know. Suppose एक market है, this is a market, okay. मार्केट में वैरायटी ऑफ शॉप्स है, एक फुटपाथ में है, दिस इज एन एग्जांपल। एक शोरूम है, एक नॉर्मल शॉप्स है। तो इस तरह का बहुत सारा टाइप वैरायटी है इस तरह की, ठीक है। अब क्या होता है, जो मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कस्टमर्स गोज टू डिफरेंट शॉप्स। जैसे कुछ कस्टमर्स है जिसके पास पैसे नहीं है, मीन्स जो दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और दोज हु आर
poor people, they go and shop in the footpath. Okay, कुछ लोग जो those who are rich, ठीक है, they can go to the showroom, एंड मिडिल क्लास फैमिलीज कैन गो टू नॉर्मल शॉप्स लाइक दिस। मैंने एक एक आइडिया मैं दे रहा हूँ जी क्या होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक सेगमेंटेशन हो जाता है जे कोई किस तरह कस्टमर किस तरह के शॉप में जाते हैं। और ऑलरेडी वी नो जो फुटपाथ में जो शॉप्स है उसमें क्या होता है, कपड़े सस्ते होते हैं, क्वालिटी भी बहुत क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और वहां पे जो कस्टमर जाता है वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो वो उस तरह के उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका उसका ड्रेस खरीदने के तरीके, इससे हम कस्टमर को क्या कर सकते हैं, कस्टमर का एनालाइज कर सकते हैं जो ये इस सेगमेंट के बंदा है। ठीक है, दूसरा कोई और सेगमेंट का, कोई साइकिल लेके जाते हैं, कोई बस लेके कोई सपोज कार लेके जाते हैं, कोई बाइक राइड करते हैं। तो क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, सेगमेंट कर लेते हैं कस्टमर्स को। हम अलग अलग सेगमेंट में कर सकते हैं उस तरह की कुछ। ये कस्टमर सेगमेंटेशन एक हमने प्रॉब्लम लिया है एक मार्केट की, जो किस तरह की खर्चे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट प्रॉपरली करता है कि नहीं, या वो मिनिमम अमाउंट ड्यू वही पे करता और फिर नेक्स्ट मंथ में वो शिफ्ट कर लेता है। इस तरह के जो सिचुएशन है, इससे हम क्या करेंगे, कस्टमर को सेगमेंट कर लेंगे, जे किस तरह का कस्टमर, किस तरह का कस्टमर है वो। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड द कस्टमर्स अकॉर्डिंगली। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। इसी तरह के तो इसी तरह का कोई एक प्रॉब्लम लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये सेगमेंटेशन अलग अलग इसमें डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं हम, इसको सिंपल लैंग्वेज में व्हाट यू कैन से, इट्स अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, क्लस्टर्स क्लस्टर्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स यू कैन से। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। एंड दिस इज ए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लर्निंग मेथड। ओके, होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो मीन्स जितने भी क्लस्टर्स में होते हैं, एग्जांपल ले लो, ये एक मार्केट है। ओके, ऐसे ऐसे क्लस्टर्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ कस्टमर्स के लिए अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं ना, इस तरह की। ठीक है, कितनी टाइप के क्लस्टर्स होते हैं, हाँ ठीक है ना, कितने क्लस्टर्स बनेंगे, हाँ ठीक है, तो दैट ऑल्सो यू डू नॉट नो। जैसे हम, मुझे मार्केट मिल गया, ठीक है, कितने क्लस्टर्स बनेंगे, हमारे मशीन को तो नहीं पता ना कि कितने क्लस्टर में डिवाइड करने या क्या करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव डेवलप्ड अ मेथड दैट इज नोन एज एल्बो मेथड। एल्बो मेथड एक मेथड है, एल्बो मेथड। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर, हम पता कर लेंगे कि कितने क्लस्टर्स में एक पर्टिकुलर मार्केट की कस्टमर्स को हम ब्रेक डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके देख सकते हैं कि किस कस्टमर के क्या कंडीशन है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, एल्बो मेथड से हम करेंगे। ओके, तो अब एल्बो मेथड होता क्या है, एल्बो मेथड एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड यू कैन से। ओके, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे लिखो WCSS। अब ये क्या है WCSS, ये भी आप पूछोगे। विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब क्या होता है, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका पोजीशन है 2 1, ये है 3 5, एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ढूंढेंगे, ये डिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे सपोज 3 6 है, एक पॉइंट, एग्जाम्पल ले लो, इतना इतना दूर में तो होगा नहीं, 3 6 एक पॉइंट है। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम देखें, ये सपोज दिस इज द सेंट्रॉइड, ये दिस इज द बॉस, और यहाँ पे ये बॉस है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को बॉस बोलो सपोज। ठीक है, दिस इज द बॉस। अब क्या करेंगे, ये एक डिस्टेंस निकालेंगे और इधर एक डिस्टेंस निकालेंगे, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा उसके उसके ग्रुप में वो चला जाएगा, ही इज द बॉस। सेंट्रॉइड 1, ये सेंट्रॉइड 2। अब दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 2 है, इसके इसमें पहला वैल्यू क्या, 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 1 प्लस 4 हो गया 5 हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
ये क्या था? 3 है, 3 - 6 का होल स्क्वायर। 3 - 3 तो 0 हो जाता, 3 - 6 कितना था? -3, -3 का होल स्क्वायर कितना था? 9। एम आई डूइंग करेक्ट? हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कौन सी कम हो रही है? सपोज ये कितना है, 1 - 3 इज -4, 1 - 3 - 2 4 हो गया, 2 - 3 इज 1, 2 - 3 इज -1, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 4 5, यहाँ पे 3 - 3 का होल स्क्वायर। अब 3 - 6, हाँ 3 - 3 - 3 तो 9 हो गया। ये डिस्टेंस ज्यादा है थोड़ा, ये डिस्टेंस ज्यादा है। इट्स नॉट लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सपोज ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर ये हम बॉक्स को नहीं लेंगे, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस सेंट्रॉइड में। तो इसको बोलते हैं WCSS। अब क्या होता है, ये जो चीज है ऐसे करके पॉइंट्स आएंगे आगे आगे, देख लो डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे ही डिस्टेंस कम होने लगेगा, ऐसे होके ऐसे हो रहे, ज्यादा हो रहे, फिर ऐसे हो रहे, फिर ऐसे हो रहे, फिर ऐसे हो रहे, देखो पास पास है सारे, फिर ऐसे हो रहे, फिर ऐसे हो रहे। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये हम लेंगे नंबर ऑफ क्लस्टर्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मतलब क्या हो रहे, इसमें सारे डिस्टेंस बड़ा बड़ा है, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, ये सारे बड़े। एक बार और फिगर को मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट को। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ऐसे करके जा रहा है। इसको क्रॉस कर, ऐसे ऐसे करना, ऐसे। अब इसको ज्वाइन कर दो, देखो डिस्टेंस काफी है, इसका भी डिस्टेंस काफी है, इसका डिस्टेंस कम होने लगे। तो जिस जगह से कम हो रहा है, यहां से कम हो रहा है, तो इसको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम निकालेंगे, ये कौन से पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कस्टमर्स नहीं, क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो इस पॉइंट का हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने दिखाया ऐसे, इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर करेंगे, जो भी हम लाइब्रेरी यूज करेंगे वही लाइब्रेरी करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये जो सेंट्रॉइड और ये सब चीजें कर रहे हैं, इस एल्गो का नाम क्या है, के मीन्स एल्गो। जो आप लोग न्यू हो, जिसको कुछ भी नहीं पता, BCA फर्स्ट सेमेस्टर, डू नॉट गेट स्केयर्ड, ओके। वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शंस, एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बस जितना मिनी, जितने सिंपल सिंपल करके मैं समझा सकता हूँ, आई एम क्लियरिंग द थिंग्स, ओके। उसके बाद आप आस्ते आस्ते जब मैथमेटिक्स और ज्यादा कंप्यूटर साइंस में, व्हेन यू गो गो डीप इनटू इट, ठीक है, तो आप लोग को सारी बातें समझ में आने लगेगा। उसके बाद वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जैसे आप लोग का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और ये क्या बोले, इसको कोडिंग कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ। कोडिंग इसी स्टाइल से करेंगे। अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट के बहुत सारे 5th सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, उसका प्रोजेक्ट, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी हम एक ट्रेनिंग लेके आएंगे, ओनली मैथमेटिक्स, कैसे पीछे काम कर रहे हैं सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, उसके ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर, एवरीबडी कैन ज्वाइन। इससे क्या होगा, आप लोग प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे, ठीक है। आप लोग जो बाहर जाके 4,000 5,000 खर्च करते हो और प्रोजेक्ट, घिसी-पिटी प्रोजेक्ट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हो, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपने खुद ही बैठ के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आपको जब मैथमेटिक्स आता है, आपको व्हेन यू नो द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, फिर आप लोग को कुछ जरूरत नहीं है वो सारे में। क्योंकि जब भी आप वाइवा देने जाओगे ये सारा प्रोजेक्ट बना के, तो फिर दे आर गोइंग टू आस्क द कोडिंग। कोडिंग तो सिंपल है, एक ही कोडिंग बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लेवल 2 इज डिफरेंट, आई विल टॉक लेटर ऑन अबाउट इट, ठीक है। लेकिन यदि आप मशीन लर्निंग पे करना चाहते हो, तो यही कोडिंग से भी आप काम चला सकते हो, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। साथ में क्या होगा, ये सारी दो चार कोडिंग से तो काम नहीं बनेगा, तो वो क्या करेंगे, मैथ्स भी पूछेंगे आपको, ये कैसे, हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली इन द बैकग्राउंड। व्हेन यू एक्सप्लेन, यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स। 300 मार्क का प्रोजेक्ट होता है, 300 मार्क्स में सोच लो आप 280 भी दे सकते हो, योर इफ योर मैथ्स इज वेरी गुड। मेरा मैथ्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, एंड इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू। It's very easy and it's very interesting. The most important thing, it's very interesting. And when it is interesting, then it is very easy. That's all. Okay, so let's come to the topic. Let me delete all these things. इसका थोड़ा कोडिंग अलग होगा, थोड़ा सा कोडिंग अलग होंगे, वो लास्ट में देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, पहले इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज, व्हाट आई एम डूइंग,
आई एम इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरीज, ये तो पता ही है, इम्पोर्ट नंपर्स, एनपी, इम्पोर्ट वेंडर्स, पीडी, ये सारे कर लो। उसके बाद क्या है, डेटा सेट। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा सेट इक्वल टू पीडी डॉट रीड, इसको हम अपलोड करें, डेटा सेट को अपलोड, अपलोडिंग डेटा सेट। ओके, अभी डेटा सेट में आ चुका है ये पूरा डेटा सेट, जनरल डॉट CSV। उसके बाद डेटा सेट डॉट हेड, हेड करने से क्या होगा, फर्स्ट फाइव रोज ऑफ द डेटा सेट आ जाएंगे, ये आ गए 0 1 2 3 4, और यहाँ पे सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा सेट डॉट शेप, शेप करने से ये आ जाएंगे रोज और कॉलम्स। डेटा सेट डॉट कॉलम्स, सारे पता है, सारे कॉलम्स दिख जाएंगे। डेटा सेट डॉट इन्फो, दिख जाएंगे कौन सा क्या है, न्यूमेरिक है, कौन सा कैटेगरिकल है, ये भी पता चल जाएंगे यहाँ से। आप क्या होता है, आप चेक करेंगे कि कौन कौन सा ये है, क्या बोलते हैं, कैटेगरी कॉलम है, तो सिर्फ दिख रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी देखते हैं, कस्टमर आईडी कहाँ है, यही कैटेगरिकल कॉलम है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी, और न्यूमेरिकल कॉलम्स कितना है, 17 है, देखो लेंथ निकाल 17। उसके बाद समरी, समरी निकलेगा तो सबके निकल गए न्यूमेरिकल की। ओके, अब डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज, डेटा सेट डॉट इज नल, वही सेम स्टाइल, ट्रू, ट्रू है मतलब क्या, मिसिंग वैल्यूज है। उसके बाद क्या होगा, कितने हैं वो, 314। अब क्या करें, डेटा सेट डॉट कॉलम, डेटा सेट डॉट इजनल डॉट एडी, किसमें है, क्रेडिट लिमिट, मिनिमम पेमेंट्स, इसी में है सारे ये क्या बोलते हैं, मिसिंग वैल्यूज। ओके, तो लेंथ कितना है, 2, क्योंकि 2 कॉलम्स में है तो 2। उसके बाद डेटा सेट, इसमें क्या करेंगे हम, मीन देखे, दोनों में मीन देके फुल कर देंगे, सिंपल। उसके बाद लेंथ निकालोगे 0, क्योंकि सारे में मैंने क्या कर दिए, डेटा इंप्यूट कर दिए, हमने इंप्यूट कर दिए वैल्यूज। अब इनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा, इनकोडिंग कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसको, कैटेगरिकल कॉलम को, जैसे डिटेल्स, ये आ गया, ठीक है। आप देखो कस्टमर आईडी, हमें कस्टमर आईडी की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम कस्टमर आईडी की इसलिए जरूरत नहीं है, जब हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो कस्टमर आईडी को उस बंदे का नाम से हमें क्या मतलब है, अलग अलग कर देंगे कस्टमर्स को ना, तो कस्टमर आईडी को लेकर हमें कोई मतलब नहीं है अभी, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कस्टमर डिटेल्स, आई एम आस्किंग अबाउट द क्लस्टरिंग। तो कस्टमर आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, नॉट रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, देखो यहाँ पे ड्रॉप किया है मैंने, कस्टमर आईडी को मैंने ड्रॉप कर दिया हो, ठीक है। उसके बाद डेटा सेट डॉट हेड कर दिया, ड्रॉप करने के बाद क्या हो गया, बैलेंस, ये सारी चीजें आ गई, सारे न्यूमेरिकल आ गए। उसके बाद कैटेगरी के कॉलम्स चेक करें, कैटेगरी कॉलम्स कितने हैं, 0। इतना तक तो आप लोग को क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी आपने की है, ठीक है। तो ये ड्रॉप वगैरह मैंने बता दिया क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, उससे क्या फिर हो जाएगा, कोरिलेशन चेक करेंगे एक्चुअली। तो हिट मैप यूज करेंगे, हिट मैप यूज किए, हिट मैप यूज करके ये दिख रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे हाईली कोरिलेटेड क्या है, ये देखो 0.92, ये हाईली कोरिलेटेड है। उसके बाद क्या है, 0. अच्छा ये नहीं है, 0.92 हो गया। उसके बाद ये देखो इधर भी है, क्या है, मतलब क्या होगा, परचेजेस, और इधर भी नीचे भी क्या होगा, ये परचेजेस है, ऑफ ऑन ऑफ परचेजेस, तो और ये क्या है, परचेजेस है, तो थर्ड में ऑन ऑफ परचेजेस और परचेजेस, ये दोनों में बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। तो इस तरह की चीजें हमें पता चल जाती है, फिगर से हमें पता चल जाता है। कोई यदि पूछेंगे जो हाईली कोरिलेटेड कौन सा कॉलम्स है, तो आप क्या करोगे, ये एक हिट मैप देख के हम पता कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द वाइवा। ओके, जैसे 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो जितना 1 के पास जाएगा तो दे आर हाईली कोरिलेटेड। ओके, आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द डेटा सेट, आप स्प्लिटिंग तो डेटा सेट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, टारगेट नहीं, टारगेट मतलब क्या है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नो डिपेंडेंट वेरिएबल है, नो डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, बिकॉज, किस लिए, बिकॉज नो क्लास लेवल, लास्ट वाला जो होता है क्लास लेवल होता है ना, क्लास लेवल नहीं है, ये क्या है, ये ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, तो इसमें क्या क्लास लेवल होता नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या होगा, इसमें तो कोई है ही नहीं वो चीज, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो ओनली, देखो यहाँ पे लिखा हो ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नो टारगेट वेरिएबल, मतलब नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप फीचर स्केलिंग करेंगे, फीचर स्केलिंग क्यों करेंगे वो भी आप लोग को पता है, फीचर स्केलिंग इसलिए करेंगे ताकि हम, हमारा क्या होता है, जो एरर्स है, एरर्स कैन बी मिनिमाइज फास्टर, यू कैन से। आप क्या करेंगे, एससी स्टैंडर्ड स्केल, एससी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर डेटा सेट, पूरा डेटा सेट को क्या कर दिया मैंने, स्केल्ड कर दिया एकदम
-3 to 3 के अंदर भी आएंगे। अब एल्बो मेथड हमने ऑलरेडी डिफाइन बात की है, एल्बो मेथड की, वो एक ग्राफिकल मेथड है। अब क्या किए, WCSS एक एक मैंने लिस्ट ले लिया WCSS। अब फॉर आई इन रेंज 1 to 20, अब 1 to 20 क्यों लिए? अब ये आपने फॉर लूप तो आपने पढ़ा ही है, मोनिका ने आपने पढ़ा ही है। फॉर आई इन रेंज 1 to 20 मतलब 1 से 20 तक ये लूप चलेगा। ओके, अब रेंज 1 to 20 क्यों लिए, ये भी आप लोग का क्वेश्चन में आ रहा है। देखो जितना भी बड़ा मार्केट हो, ठीक है, 20 से ज्यादा क्लस्टर नहीं होंगे, हम एज्यूम करते हैं, ये नहीं ये होगा नहीं, वी एज्यूम इट लाइक दैट, वी आर एज्यूमिंग, दैट्स व्हाई यू गिवन द रेंज बिटवीन 1 to 20, मतलब 1 to 20 के बीच में ही होंगे। ओके, अब k मीन्स इक्वल टू k मीन्स, ब्रैकेट में लिखो n ऑफ n क्लस्टर्स इक्वल टू i, पहले 1 से स्टार्ट होगा, इनिट इक्वल टू k मीन्स प्लस प्लस, इनिशियल स्टार्ट होगा k मीन्स प्लस प्लस, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट। आप के मीन्स डॉट फिट डेटा सेट को पूरा फिट कर दो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू सी अपेंड के मीन्स डॉट इनर्सिया। इनर्सिया क्या है, के मीन्स डॉट इनर्सिया, ये भी एक फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, इट टेल्स हाउ द डेटा वाज क्लस्टर्ड बाय के मीन्स, इट टेल्स, लिख देता हूं यहाँ पे, इट मेजर्स हाउ वेल data set is clustered by k means। जैसे i इक्वल टू 1 हो गया, उसके बाद 2, ऐसे करके हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं इस जगह से। तो ये जो किया हमने, करने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपका जो लूप के अंदर जो भी वॉट एवर द वर्क इज गोइंग, वर्क इज इन प्रोग्रेस, उसको हम क्या करेंगे, हम एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और डायग्रामेटिकली देखना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, PLT डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में लिखो रेंज 120, क्योंकि रेंज 1 से 20 तक जा रहा है, 1 से 20 तक ही जा रही है। ठीक है, दिख रहा है ये फिगर, ये 1 से 20 तक ही जा रहे हैं, 1 से 20 तक ही देखो, 1 से 20, ये 20 वाला पॉइंट है और ये 1 वाला पॉइंट है। 120 WCSS को डाल दो और DX माइनस माइनस, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस तरह का फिगर बन जाएगा, इस तरह का क्रॉस क्रॉस में। ठीक है, और डॉट डैश हो जाएगा, डैश लाइन आ जाएगा, डैश डैश करके, ये एक्चुअली ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये डैश है, तो ये वाला डैश है, दिस वन। उसके बाद क्या करेंगे, PLT डॉट टाइटल एल्बो मेथड, देखो यहाँ पे एल्बो मेथड, PLT डॉट द एल्बो मेथड, यहाँ पे दिख रहे, टाइटल में मैंने एल्बो मेथड लगा दिया। PLT डॉट एक्स लेवल, ये एक्स है, तो एक्स में नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने लिख दिया, देखो नंबर ऑफ क्लस्टर्स यहाँ पे आ गए। PLT डॉट वाई लेवल को क्या कर दिया, WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, ये वाला मैंने डाल दिया। ठीक है, PLT डॉट शो करेगा तो ये सारे शो कर रहे हैं। तो आप लोग को एक चीज दिख रहे, एक मिनट इसको डिलीट कर दो, इसके और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है, फिर डिस्टेंस कम हो रहा 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 है, फिर एक साइड ये वाला पॉइंट आ गया, क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, या ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते ही जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स विच इज इक्वल टू 8 हियर, यहाँ पे 8 है वो। होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को रफली आप लोग को ये चीज को समझना है। ठीक है, तो ये दिस इज द वे टू राइट। कोई भी आपका यदि क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है, इसी तरीके से आप लोग लिखोगे, कोई एरर आएगा यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो दिस इज द वे टू राइट। शॉर्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप मॉडल को बिल्ड करना है। आप मॉडल को कैसे बिल्ड करें, दैट इज ऑल्सो द थिंग। अब फ्रॉम sklearn लर्न डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट के मीन्स, वो तो करेंगे क्योंकि हमें के मीन्स के एल्गो को यूज करेंगे, तो के मीन्स तो करना ही है। उसके बाद के मीन्स इक्वल के मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स को क्या कर दिया मैंने, 8 कर दिए। इनिशियल स्टार्ट हो गया था के मीन्स प्लस प्लस, रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 कर दो। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं, तो वाई मीन्स इक्वल टू क्या करेंगे, के मीन्स डॉट फिट अंडरस्कोर डेटा सेट, पूरा डेटा सेट को डाल दो उसके अंदर। अब वाई मीन्स में आगे, अब वाई मीन्स में क्या हो गया, सारे जितने जितने ये है क्लस्टर्स है, वो सारे क्लस्टर्स दिख गए। क्या हो गया, ये 0 से कितना तक है, 0 से 6 तक यहाँ पे देख रहे, 0 से 6 या 0 से 7 कुछ एक होगा, 0 से 7 या 0 से 6। तो ये क्लस्टर्स है, एक्चुअली नंबर ऑफ क्लस्टर्स दिखा दे रहे। ये जो डेटा सेट क्या हो गया, फिट हो गया इस क्लस्टर्स के अंदर ऑटोमेटिकली।
डेटा सेट, ये जो फिट लिखा हुआ ना, डॉट फिट अंडरस्कोर फेडेड, डेटा सेट इज फिट इनटू द क्लस्टर्स. आप गेटिंग द आउटपुट. y मीन्स डॉट शेप, शेप करेंगे तो 8950, ये क्या है, ये रोज है. अब y मीन्स इक्वल y मीन्स डॉट रीशेप, लेंथ ऑफ y मीन्स जो भी है, ठीक है, कॉमा 1. तो इसको क्या किया मैंने, एक मैट्रिक्स का फॉर्म दे दिया, मैट्रिक्स का फॉर्म, नंबर ऑफ रोज 1, ठीक है. अब b इक्वल टू np डॉट कॉन्केटिनेट y मीन्स का जो वैल्यू है, कॉमा df क्या है यहाँ पे देखते हैं, कॉमा df, इट मीन्स वेयर इज द df, हाँ df इक्वल डेटा सेट. ये देख रहे हैं यहाँ पे डेटा सेट का मैंने df में सेव करके रखा, ये है df. ओके, अब क्या करेंगे, डेटा सेट को ओरिजिनल पास कर दिया, एक्सेस इक्वल टू 1. उसके बाद df डॉट कॉलम्स कर रहे हैं, df डॉट कॉलम्स करेंगे तो ये सारी चीजें आ गई कॉलम्स में. अब df डॉट फाइनल, फाइनल में क्या करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा हम क्या किस लिए ये कर रहे हैं, ये दिस इज ऑल्सो द थिंग ना, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, ये इसलिए कर रहे हैं ना, हम देखेंगे जो कौन सा कस्टमर कौन सी क्लस्टर में गया है. दिस कस्टमर बिलोंग्स टू विच क्लस्टर. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक ये डेटा फ्रेम बना रहे हैं, डेटा फ्रेम, आई एम क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, एक एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं. तो रिपीट डेटा फ्रेम डेटा इक्वल टू बी, कॉलम्स इक्वल टू क्या क्या, क्लस्टर नंबर दिख रहा है यहाँ पे, क्लस्टर नंबर, बैलेंस फ्रीक्वेंसी, ये सारे मैंने क्या कर दिए, कॉलम्स को डाल दिए, सारे कॉलम नेम डाल दिए. ओके, उसके बाद डीएफ अंडरस्कोर फाइनल डॉट हेड फंक्शन, हेड फंक्शन करते क्या होगा, फर्स्ट 5 रोज दिखेगा. अब देखो क्लस्टर, ये जो जीरो कस्टमर, ये वाला कस्टमर है, कस्टमर नंबर 0, हाँ ये क्या फर्स्ट क्लस्टर में गया, कस्टमर नंबर 1, ये किस कस्टमर गया, फोर्थ क्लस्टर में गया, कस्टमर नंबर 2 जीरो क्लस्टर में गया, कस्टमर नंबर 3 फर्स्ट क्लस्टर में गया. तो इस तरह क्या हो, क्लस्टर को डिफाइन कर, कौन सा कस्टमर कौन सा क्लस्टर का है, कौन सा ग्रुप का है वो सॉरी, किस ग्रुप का है वो हम यहाँ पे पता चल जाएगा, इस टेबल से, इस डेटा फ्रेम से, इस मैट्रिक्स से हमें पता चल जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं सोचूंगा, मीन्स मैं देखना चाहता हूँ किसमें, एक्सेल फाइल में. तो हम क्या करेंगे, df अंडरस्कोर फाइनल, ये तो नेम ऑफ द डेटा फ्रेम है, डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी, तो टू अंडरस्कोर सीएसवी करके जब ये कस्टमर्स को डाल, यहाँ पे लिख दो सेगमेंटेड कस्टमर, तो क्या हो गया, डीएफ डॉट फाइनल को क्या हो गया, सीएसवी सेगमेंटेड कस्टमर नाम है, उस नाम की एक फाइल बन गया. अब उस फाइल को देखो, उस फाइल में सारे जितने भी कस्टमर्स है, सब कौन कैसा कस्टमर कौन सी क्लस्टर में गया, वो सारे आपको सामने इन फ्रंट ऑफ यू इट विल बी शोन. ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो. तो ऐसे करके ये हम लोग क्या करें, एक कस्टमर सेगमेंटेशन का एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को हमने सॉल्व किया है. सुपरवाइज्ड में एक हमने किया है, ठीक है, एक अनसुपरवाइज्ड में हमने अब अभी कर दिए. तो दिस इज द थिंग, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड्स. ठीक है, तो कोड सेम ही रहेंगे. यदि आपका कोई, यदि अभी फॉर द टाइम बिंग यदि कोई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से कर सकते हो. ठीक है, डेटा सेट को आपने ले लिए, उसके बाद डेटा सेट को क्लीनिंग करो. आप डेटा सेट किस तरह के किस कंडीशन में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसको आपको पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग ऑल दीज थिंग्स आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इसी तरीके से करोगे तो आप एक क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब चलो इसकी प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग चलते हैं. तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन में कस्टमर सेगमेंटेशन की. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे. अब गूगल क्रोम में गए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गूगल कोलैब, जैसे हम करते थे वही सेम स्टाइल. उसके बाद कोलैबोरेटिव में चलते हैं. उसके बाद हम न्यू नोटबुक करेंगे. सॉरी, दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ डे 4. ओके, तो और थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इट्स ओके. आप लोग को अभी तो बहुत कुछ करना आगे. तो हम लोग 10 घंटे का सब प्रोजेक्ट सोच के रखे थे, 10 घंटे की पूरी ट्रेनिंग. इट कैन बी अप टू 14-15 आवर्स हो जाएंगे, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इट हैपन्स. तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा साथ में. ये नहीं चाहिए यू गॉट फेड अप, इतना थक गए, टर्ड. देयर इज नो टाइम टू गेट टायर्ड, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. एक कोटेशन आपने सुना ही होगा. ठीक है, यू फॉलो दैट थिंग.
तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप में गए, कस्टमर सेगमेंटेशन दिख रहे हैं। आप देखो मेरे खुद की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। चलो हमारा देश का कुछ भला हो जाएंगे, आप लोग कुछ करोगे तो फिर हमारे देश का ही तो कुछ होगा। यू पीपल आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये देखो यहाँ पे आ गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया, ये पूरा कोडिंग आ गया। अब हमें डेटा सेट चाहिए पूरी, ठीक है। तो डेटा सेट कहाँ से मिलेंगे, कैगल से। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, लेकिन आप लोग को एक बार दिखा दूँ। ये दिख रहे, क्रेडिट कार्ड डेटा सेट फॉर क्लस्टरिंग, ये पूरा डेटा सेट है। आप क्या करेंगे, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस पोर्शन से, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे इस डेटा सेट को। हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लो kaggle.com, यहाँ से डाउनलोड कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जगह में जाओ, अभी आएंगे यहाँ पे फाइल अपलोड करने की। इसके बाद यहाँ पे जाओ, अपलोड। अपलोड कौन सा है, ये वाला फाइल को मैंने अपलोड कर लिया। अब देखो तो ये दिख रहा है क्या नहीं, सीसी प्लस जनरल आ तो नहीं रहा फाइल, ये देखो आ गया यहाँ पे, कैन यू सी, सीसी प्लस जनरल डॉट CSV, ये फाइल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोडिंग तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग पे क्या करेंगे, लाइब्रेरीज और डेटा लाइब्रेरीज को पहले ये कर लेंगे, हम सारे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद डेटा सेट को अपलोड करके इसमें कॉपी कर लेंगे, डेटा सेट फोल्डर में। देखो नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट रुको। कॉपी पाथ, Ctrl+V, हाँ आ गया, कैन यू सी है, ये पूरा ये आ गया ऑटोमेटिकली। आप डेटा सेट डॉट हेड करते हैं, हम देखते हैं, हाँ द फाइल इज हियर, ओके। अब डेटा एक्सप्लोरेशन वही सेम चीज, बार बार क्या रिपीट करूँ बातें। डेटा सेट डॉट शिप, रोज और कॉलम्स आ जाएंगे। डेटा सेट डॉट कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स है, डेटा सेट डॉट इन्फो, आप लोग को भी रट गया होगा ये सारी बातें। कैटेगरी कॉलम्स, कस्टमर आईडी। अब इसको क्या करेंगे, कितना लेंथ है, ये लेंथ है। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कॉलम देखेंगे, ये है लेंथ, देखो सब लेंथ। अब स्टैटिस्टिकल समरी किसके निकलते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स की। डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज, ये भी देखते हैं, ट्रू। 340 मिसिंग वैल्यूज है। अब कहाँ पे है देखते हैं, कौन सा कॉलम, क्रेडिट लिमिट और मिनिमम पेमेंट्स। आप लेंथ देखेंगे 2 है। आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सारे मीन्स में मैंने डाल दिए। मीन्स क्या हो रहा है, इंप्यूटिंग करें, आई एम इंप्यूटिंग द वैल्यूज विथ मीन वैल्यू, मीन दोनों कॉलम में। उसके बाद आप चेक करो, देखो यू विल गेट 0, क्योंकि सारे इंप्यूट हो चुका है, वैल्यू सारे आ चुके हैं। आप इनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा, लेकिन कैटेगरी डेटा हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, यू नो दैट थिंग। एक ये कस्टमर आईडी, कस्टमर इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर करेंगे, देखते हैं, देखो वो कस्टमर आईडी हट चुका है। फिर कैटेगरी कॉलम चेक करो, चेक करना चाहोगे तो लेन निकालो, 0। आई एम क्लियर। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये भी हमने बात कर चुके हैं आपसे, हीट मैप के थ्रू से हम चेक करेंगे। बता दिए कौन से हाईली कोरिलेटेड है, ये सारे ऑटोमेटिकली फिगर्स हमें पता चल जाते हैं। इसे 0.96 कहाँ देखा था मैंने, 0.92 यहाँ पे है, 0.92 यहाँ पे है। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह होंगे, ठीक है, तो आप लोग देखोगे। तो ऐसे विजुअलाइज करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में वाइवा में भी पूछ सकते हैं। आपको पकड़ा देंगे, बोलेंगे आप बताओ यहाँ पे कौन सा क्या है,
ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट टारगेट वेरिएबल, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आप डीएफ में डेटा सेट को कॉपी कर लिए, आप इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स के लिए आप क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग हो चुके, उसके बाद एल्बो मेथड। एल्बो मेथड किस लिए? नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकालने के लिए। ये अभी चल रही है, 1 मिनट रुको, इसको पूरा कंप्लीट होने दो। इस प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। कितने क्लस्टर्स है वो निकाल रहे हैं उस डेटा सेट से, निकल चुके हैं, आप देखते हैं। देख रहे कुछ एक वक्त के बाद देखो तो सब सेम है, सिमिलर डिस्टेंस सेम, सिमिलर डिस्टेंस सिमिलर है, तो फिर क्या होगा? देखो फ्रॉम 8, ठीक है, द डिस्टेंस इज सिमिलर, तो फिर क्या होगा? 8 इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, सिमिलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो डिस्टेंस सारे डिफरेंट, बहुत सारा काफी डिस्टेंस है, हाई डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस सिमिलर है। अब बिल्डिंग द मॉडल, अब मॉडल को कैसे बनाएं? इंपोर्ट के मीन्स, क्योंकि के मीन्स के एल्गो हम यूज करेंगे इसमें। के मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स इक्वल टू इनिट इक्वल टू रैंडम सेट, वही सेम जो बातें आपने की थी। अब फिट कर देंगे पूरा डेटा को, डेटा सेट को उसके अंदर डाल दिए। उसके बाद देखेंगे कि वाई मीन्स, वाई अंडरस्कोर के मीन्स में क्या आते हैं। देखो 0 to 7, 0 to 7 वहाँ पे गलत दिख रहा है। 0 to 7 मतलब क्या हो गया? 8 क्लस्टर्स आ गए। अब हम देखना चाहते हैं, उस डेटा सेट को देखना चाहते हैं। आगे शेप देख लेते हैं। 8950 रोज है। अब रोज और कॉलम्स में कर दिया मैंने प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वाई मीन्स डॉट शेप, ये 1, ये जो मैंने 1 दिया था। इनपुट और कॉन्करेंट y मीन्स df और x इज इक्वल टू 1 और df कॉलम्स। हम अब देखेंगे वो सारी चीजें। हम क्या करें? कॉन्करेंट करेंगे सारे इसको, क्या बोलते उसको? रोज को। कभी ज्यादा नहीं होता रोज। और क्या किया मैंने? ये सारे रोज को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या करें? df डॉट फाइनल। इसमें क्या किया मैंने? क्लस्टर नंबर एक नया कॉलम मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ये तो कॉलम सही, साथ में एक क्लस्टर नंबर भी आ गया। अब रन करो, देखो क्लस्टर नंबर दिख रहे। 0 के लिए 0 क्लस्टर नंबर 1 के लिए, 3rd क्लस्टर नंबर 2 के लिए, 5th क्लस्टर नंबर 3rd के लिए, 0th क्लस्टर नंबर 4th के लिए, 0th क्लस्टर नंबर, ऐसे करके डिवाइड हो गए। अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग इसको ये कर देंगे। मीन्स क्या बोलते हैं? तो कस्टमर सेगमेंटेशन इज डन। होप आई एम क्लियर। इसमें यदि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी दिख रहा है यहाँ पे एक आया हुआ सेगमेंटेड कस्टमर, डाउनलोड कर लो इसको। एक फोल्डर आ गया सेगमेंट कस्टमर। अब इसको खोलता हूँ, इस फोल्डर को। लेट मी ओपन इट। सो इन फोल्डर रीनेम करो, .csv लिख दो। देखो .csv कर दिया तो देखो एक्सेल फाइल की तरह बन गया। ठीक है, अब इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है क्लस्टर नंबर आ गया। इतनी सारे कस्टमर्स के सारे क्लस्टर नंबर आ गए। कौन सा क्लस्टर 4 में है, कौन सा क्लस्टर नंबर 5 में है, कौन सा क्लस्टर नंबर 2 में है, कौन सा क्लस्टर नंबर 3 में है, ये दिख रहे। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिड द कस्टमर सेगमेंटेशन। ओके, तो दिस इज द होल प्रैक्टिकल ऑफ दिस। एंड हम लोग क्या करेंगे? आप कल डे 5 है, कल हमारा 3 प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स के बाद यू शुड बी आप लोग जितना भी डे 4 तक हो वो सारी चीज़ें देखो। पाइथन के जो भी लेक्चर आज भी पाइथन के आप लोग के हुए, क्योंकि कंप्लीट करना जरूरी था। पाइथन में भी आप लोग को जॉब्स मिल जाएंगे। पाइथन में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं पाइथन डेवलपर की। तो आप लोगों को कोर पाइथन तो आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसकी ट्रेनिंग लंबा हो गया पाइथन की भी। ठीक है, 2 दिन की जगह 3 दिन हो गए, तो आप लोग को वो भी करने हैं।
ठीक है। पाइथन के तो, और कल क्या करना है, कल 3 प्रोजेक्ट्स होने के बाद आप लोग को पहले दूंगा मैं एक फीडबैक फॉर्म, एक वो फीडबैक फॉर्म भर दो ना। उसके फीडबैक फॉर्म भरने का आप लोग को 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद आप लोग का स्टार्ट होगा एक एग्जाम। ओके, देयर विल बी एग्जाम, ठीक है, एंड दैट विल बी 20 मिनट्स का 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, सॉरी 20 मार्क्स के एग्जाम होंगे उसमें। 10 मिनट के एग्जाम होंगे 20 मार्क्स की, ठीक है। 10 मिनट्स टाइम मिलेंगे 20 मार्क्स की, और वो पे टेस्ट सब दो, ठीक है। तो आप लोग को पता चलेगा व्हाट यू हैव लर्न। आप लोग यदि नहीं पढ़ाई की हो तो फिर आप लोग क्लियर वो पेपर क्लियर नहीं कर बनेगा, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्लियर भी नहीं कर पाओगे पॉसिबली, क्योंकि इट विल बी माइंड बॉगलिंग टेस्ट। ये सिंपल नहीं होंगे टेस्ट, ऐसे छोटे छोटे बातें नहीं पूछा जाएगा। अच्छे खासे मैंने क्वेश्चन बने जो दिमाग में आए, ठीक है, तो वो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करे उस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, यू वोंट क्लियर दैट थिंग। ओके, उस टेस्ट को भी आप लोग सब दीजिए, एंड दैट्स ऑल। होप आई एम क्लियर, एंड ऑल द बेस्ट। और चलिए पढ़ाई कीजिए।